likely to be succeeded. Prevention and therapy. Correct electrolyte abnormalities, जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे immediately उनको electrolyte abnormalities correct करेंगे तो उनमें ज्यादा risk कम हो जाते हैं. Continue to monitor serum electrolytes, nutrition support begin to replete aggressively. Initiate nutrition support at low rate concentration and advance to reach the goal slowly in patient who are at high risk. High risk मतलब ये जब patient TPN से या फिर पेरिफेरल न्यूट्रिशन से जब एंट्रल न्यूट्रिशन में जाते हैं तब की ये सारे रीफीडिंग सिंड्रोम के केसेस होते हैं. जनरली एंट्रल फीडिंग पहले से चल रहा है तो उसमें रीफीडिंग सिंड्रोम नहीं होता है. That's it. Thank you. Thanks a lot for your time and quiet listening. Any questions you can ask me. Thank you, ma'am. Yeah. Any questions, students? You can समझ में नहीं आया शायद से बच्चों को. कुछ क्वेश्चंस ही नहीं है. Very interactive session, ma'am. It's very basic bhi hai, and they should understand this. The only thing is here is that whenever the gut is function, always use the gut. Yes. Don't randomly go to the enteral feeding or the TPN feeding. You have always to try for the gut, right? And after that, if there is an RT feed, you have to understand that what kind of RT is installed in the patient. And then accordingly, you have to plan the diet. वेरी गुड सेशन राजश्री मैडम. वेरी सिंप्लीफाइड वे में आपने इतने प्यार से समझाया. बहुत कुछ रिफ्रेश हो गया. काफी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी तक हम लोग पढ़ाते हैं और इतना सिंप्लीफाइड वे में आपने बताया. सो इवन आई लर्न many small tips. That's really great. Yeah, thank you शीतल जी. रिफ्रेश हो गया. Yeah, thank you. One thing I want to add in the TPN part, TPN I know mostly doctors के हाथ में होता है. They have to plan for the TPN, but still you should know कि आपका जो patient है उसका कितनी tolerance power है. ये patient अगर आपके central TPN के लिए जाएगा कि ये वो peripheral के लिए जाएगा. That is depending upon the osmolarity. Right? Yeah, osmolarity. Yes. So you have to see that the solution, the given solution to the patient, it is if less than 900, that can be going to the peripheral. Peripheral, yes. Yeah. And that will be again taken care with the electrolyte support also. Yes. Osmolarity को proper करने के लिए electrolyte supports and all. But I thought ये उनको बहुत ज़्यादा deep चला जाएगा. Yeah, so I understand. But just they have to consider the osmolarity. If more than 900, then they always have to go for the central feed. Yes. And जब RT feed बना रहे हैं, even RT feed का planning कर रहे हैं, feed planning कर रहे हैं, that time also we have to take care of electrolytes also. And salt वगैरह भी उनको ऐड करना पड़ेगा. और कितने ग्राम सॉल्ट का मतलब यूज करना है वो भी हमें उनके सोडियम रिपोर्ट्स देखने के बाद पता चल जाएगा. और ये इमीडिएटली इतना रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि आज हमने सॉल्ट्स उनको प्रॉपर उस पार्टी फीड में दे दिया तो कल के रिपोर्ट्स में इमीडिएटली हमें पता चलता है कि सोडियम रेज कितना हुआ है. सो इमीडिएटली वी कैन गेट द रिजल्ट्स आल्सो. एंड मेनी टाइम्स वी नीड टू ऐड शुगर, हनी जैसी भी चीजें डालनी पड़ती है उनका कैलोरी का इंटेक बढ़ाने के लिए. Many times we need to add some skim milk powder also. So there are so many things to prepare the feed and sorry. Even we can add oils also in that to increase the calories sometimes. Yeah, oil should be added. Yes, oil should be added, and many times eggs can be added to increase the protein intake also. So all small things are there. How to prepare RT, that can be one more session actually. But यहाँ पे लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा. So I just say कि अगर किसी को कुछ query होगा तो definitely I can answer for the same. Students. मैम अगर किसी को इलियम के वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे B12 वगैरह तो उस केस में क्या करेंगे? अगर हम उसको सप्लीमेंट्स भी देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एब्जॉर्ब वहीं पे जाके होगा तो वो कर ही नहीं पाएगा. तो उस केस में मतलब क्या करना चाहिए? ये इलियम का है तो इलियम में ही B12 का ये होता है, एब्सॉर्प्शन होता है. ऐसा नहीं है, इवन गट के किसी भी पार्ट में एब्सॉर्प्शन हो ही सकता है, जेजुनम में भी हो सकता है.
टिल दैट यस डेफिनेटली इलियम में बहुत मतलब प्रॉपर हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, वहां पे गट माइक्रोबायोटा होता है तो, बट ऐसे कंडीशन में हमें B12 के इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, कितना भी सप्लीमेंट देंगे तो भी ये B12 इमीडिएटली ऊपर नहीं आएगा। बट जब हॉस्पिटल में पेशेंट है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में 3-4 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की बात है, तो इन दैट केस ऑल्सो डेफिनेटली वी कैन गिव विद द B12 इंजेक्शन। और बहुत दिनों तक ये चल रहा है इलियम, जैसे आपने कहा कि इलियम वाली चीज है, इलियस्टोमी ही किया है तो इनको बहुत दिनों तक चलेगा। इन दैट केस वी हैव टू गिव B12 इंजेक्शंस ओनली, देयर आर नो अदर अल्टरनेटिव्स। कर्ड्स वगैरह देंगे तो भी उसका इतना फायदा नहीं होने वाला है, या मतलब हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, बट इनिशियली और जैसे ही इलियम इमीडिएट आ ही जाता है, इलियम रिपेयर हो जाता है, इलियम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इमीडिएटली वी शुड स्टार्ट गिविंग हिम ओरल दिस थिंग, ओरल इन द सेंस थ्रू दैट गट माइक्रोबायोटा हमें रिपेयर करने की जो भी टेक्निक्स है, जैसे दही देना है या फिर योगर्ट जैसा देना है, या फिर हमें स्प्राउट्स का इस्तेमाल करके उसकी ग्रेवी बना के दे सकते हैं। समहाउ वी हैव टू इंक्रीज द B12। अगर एग्स वगैरह खाते हो तो बहुत ही अच्छा है, इमीडिएटली दैट कैन इंक्रीज। सो फॉर सम रीजन वी हैव टू डिपेंड ऑन दिस B12 इंजेक्शंस। अगर The compromise patient हो management, this the patient who is in RT feeding, okay, तो jejunostomy feeding for the student, madam. I हम्म just want to add on. So it is a comprehensive management by the team of यस कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट and यस nutritionist. So जब आपका वो उतना सारा देख रहे हैं तो that B12 management and all the electrolyte management on the physician's team part, that is being looked after. Only thing that nutritional support we people are doing, and when the patient, as long as he is critical, that critical nutrition part we are dealing with, that is a team approach. Okay. So yeah, that is a later team on, when approach, the yes. as soon as the patient comes in normal oral feeding, these all things will Then be yes, implemented very by well taken care, yes. food only. Okay. Yes, yes. Any other question? एक और जनरल क्वेश्चन है, ये हमने जनरली पढ़ा है कि स्टमक को एम्प्टी होने में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स लगता है। कि कुछ सर्जरी में ये कहा जाता है कि जैसे आपने बताया कि 8 to 10 आवर्स 12 आवर्स पहले से कुछ नहीं लेना है, पानी भी नहीं, जैसे कोलोनोस्कोपी है या और कोई सर्जरीज है, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं? क्योंकि पेट तो 3 से 4 घंटे में खाली हो चुका है। पेट खाली हो चुका है बेटा, लेकिन आगे उनका पूरा एसिमिलेशन, उनका पूरा एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ है ना। सी कार्बोहाइड्रेट विल टेक जस्ट 2 hours to get digested. Okay, protein will get at least 4 hours to get digested. Fat will be taking 18 hours to get digested. So जो भी हमने पहले खाना खाया है उसमें ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे के सारे एसिमिलेट होके, एब्सॉर्प्शन होके, एक्सक्रीशन होके, ये सारा प्रोसीजर में तो करना ही है ना। स्टमक खाली होके नहीं चलेगा ना, बाकी के सारे ऑर्गन्स भी तो खाली होने चाहिए, उनका काम भी तो फ्री होना चाहिए ना, वो भी अपने काम से, इन सिंपल वर्ड्स। यस मैम, है ना, इसके लिए 8 to 12 hours. ओके, थैंक यू। क्लियर? यस। Anyone else? और किसी को? भागेश्वरी, बंसरी, nobody is asking anything. Hina, Jenny, Janvi, all clear? I think all clear. मैम वाइवा में पता चलेगा कि हाउ ऑल क्लियर है कि नहीं। ये थोड़ा आज अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट था, और एक्चुअली ये एक सब्जेक्ट है कि जहाँ पे डाइटिशियंस कैन रियली वर्क इन द हॉस्पिटल अ लॉट। अगर ये क्लियर हो गया तो एक काम करने का मजा भी आता है हॉस्पिटल में प्री एंड पोस्ट। मैम ये बेसिकली प्रैक्टिकली आप जितना करते हो उतना, जैसे हम कहते हैं कि जो आरटी फीड्स है दैट इज अ ड्यूटी ऑफ नर्स, बट आई हैव डन इट माई सेल्फ ऑल्सो। मतलब मुझे पता लगता है कि जो सोल्यूशन बनाया है वो पेशेंट को कैसे अंदर जा रहा है। वी हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। ये भी हो सकता है, और दूसरी चीज हमें ये भी बताना पड़ता है उनको कि भाई मेडिकेशन जो है वो आरटी फीड में कूट के मत डाले। दिस इज एक्चुअली रेगुलर प्रैक्टिस। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और पहले और बाद में आरटी फीड डालने से पहले और बाद में एक 50-50 ml जितना पानी डाल दो, और फिर एस्पिरेट अननेसेसरी मत कराओ उनको। 30 ml जितना, 50 ml जितना है तो गिव इट बैक।
all such things we only have to tell the nursing. Yeah, even Yes, especially for the bolus dose. bolus क्योंकि dose, उसमें yes. clotting बहुत होती है और हाँ, नर्सेज तो रैंडमली बस उसमें डाल देती हैं, दे डोंट केयर कि उसमें yes. क्लॉटिंग है कि नहीं है, हाँ, exactly. वॉश इट आउट. जनरली डोंट गेट. इसीलिए हमारे हॉस्पिटल में नर्सिंग को हर हफ्ते या फिर हर 15-20 दिन में एक न्यू स्टाफ जो भी आता है उन लोगों को एक गाइडेंस जैसा एक लेक्चर दिया जाता है कि छोटी छोटी चीजें उनको कैसे फॉलो करनी है. Yes, definitely. Even dietitian सॉल्ट should follow वगैरह, that also. या एक्चुअली, एंड सॉल्ट वगैरह हम लोग दे देते हैं कि इसमें ऐड करके देना है, तो आर दे एडिंग इट और नॉट. अगर हम लोग ऐसे ही दे दिए और उन्होंने ऐड नहीं किया है तो इन दैट केस हम लोग तो यहाँ से भेज रहे हैं लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया है तो हम लोग और भेजते रहेंगे और भेजते रहेंगे. वी आर thinking कि we are giving and it is not going to the patient, and doctors may start with some 10% NaCl also. So इस तरह से ना हो. ये सब भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ख्याल करनी पड़ती है. जो पेशेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो अल्टीमेटली विल बी familiar with the things. Yes, ma'am. Especially उस टाइम पे राउंड्स लगाओ जब भी उनके फीड का टाइम हो. Then इनका you can टाइम हो see. जाता है. Then एग्जैक्टली. you can exactly see कि क्या सिचुएशन में वो लोग फीडिंग करते हैं. एक्चुअली फीड को कूट मतलब मेडिकेशंस को कूट के या फिर कैप्सूल को ओपन करके उसमें डाल देने का एक सीरियसली बुरा तरीका है. पूरे हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल में फूड के चलता अंदर रहता मिक्स है. कर देते हैं मैम कई बार तो. कूट के, हाँ वही आता वही है, उसके उसके अंदर अंदर मिक्स ही कर वो देते उसकी दवाई डाल के उसके हैं. साथ ही हाँ, दे देते हैं. तो ना दवाई का असर ठीक से होगा ना न्यूट्रिशन का असर ठीक से होगा. Yes. दोनों चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है. हम इवन वो मेडिसिन फीडिंग में भी मिक्स कर देते हैं, तो वो भी हमें एग्जैक्टली. सिखाना चाहिए कि वो अलग से एक्चुअली फीड वही करनी है. बात चल रही है मीनाक्षी. हाँ हाँ, वही कर रही एंड हूँ. सेकेंड थिंग मैम कि जब हम फीड देते हैं, जैसे उन लोग ने डिजाइन किया है कि 200 ml 2 आवली कि हमें 2 लीटर देना है, तो सिस्टर्स क्या करेगी कि दे विल फीड द 200 ml एंड दे वोंट कैलकुलेट द नेक्स्ट वाटर जो उसने मेडिसिन के साथ प्रोवाइड एक्चुअली किया हाँ है. हाँ हाँ हाँ. और दूसरे जो भी उसने वाटर फ्लश दिया है वो भी वो लोग कैलकुलेट नहीं नहीं करेंगे. करेंगे. तो हाँ, वो हमें उसको सिखाना पड़ेगा कि भाई वो हमें भी वाटर उनके इनपुट में कैलकुलेट करो so that output will be properly managed and properly counted. ओके. तो उसके लिए उसकी वजह से इनटेक आउटपुट में समटाइम्स एरर आती है कि भाई यस आती इनटेक है. इज वही वही लेस एंड आउटपुट इज एक्चुअली. मोर. सो यस वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक्चुअली होता ही है. Then let's wind up this session. Yeah. Thank you, Rajesh ma'am. It was really informative, and we are really very happy to have you here. Yeah, thank you. Thanks a Thanks lot. a lot. Thanks a lot. Thank you. Yeah. And over to Students, we Meenakshi. have a 5 minutes break. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Sure. By 4:35, we will start, Meenakshi. Okay. ओके मैम, नो प्रॉब्लम. Yeah.
Shazia ma'am, are you here? Yes, Shruti. मैम ये जया बहन परमार पिछले 3 सेशन से एब्सेंट है। हाँ, उसकी शादी हो रही है। ओह, दैट्स ओके। ठीक है, फाइन। एक रुचिता का भी काफी कम सेशंस अटेंड है। निसरता रुचिता। रुचिता बहन, रमन भाई, निशता। उसको देख लेंगे। इन दोनों का एक चेक करना। ये सबका तो ठीक चल रहा है। एक प्रियंका के 2 सेशन मिस हुए हैं। बैरागी। हाँ, ठीक है। आज भी 4-5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। कौन कौन होंगे? जिया नहीं है, ये नीनामा, निराली बहन, देन रिपल, रुचिता, then this वृष्टि, पटेल। हाँ, बाकी सब प्रेजेंट है। ठीक है, कल देख लेंगे। ठीक है। Ma'am, I am present. Who is this? Vrishti Patel. पे आपका नाम क्यों नहीं दिख रहा बेटे? अभी आए हो? मैम, नो मैम, कब से हूँ? स्टार्टिंग से। ओके, फाइन। बाकी किसी का मिस हुआ है? जिया बहन का ठीक है। इसका निर्मला, नीनामा, रिपल, रुचिता, इन तीनों में से है कोई? Okay, I think they are absent. मैम, दिशा दवे लेफ्ट हो गई है क्योंकि उसका नेट डेटा पैक खत्म हो गया इसलिए। Okay, fine. See, ये जो लॉस है ये आपका ही है। You have to manage with your datas and all. आपको पता है कि पूरे दिन में 3 घंटे का सेशन है जो कि वीकेंड के ऊपर ही है, and it is like a speakers you won't be hearing in them all together. कभी भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको, right? So you have to see, कहीं से भी मैनेज करो। 2-3 मोबाइल अपने पास मैनेज करके रखो इस टाइम पे, कि एक का खत्म हो दूसरा का चालू करो। Today we have only one session only. We have, ma'am. है श्रुति? No, we are starting with the other. अच्छा। Meenakshi, should we start? All are back? Yes, ma'am. Okay. So our next speaker is Meenakshi. She is a registered dietitian and working in Unique Hospital, Surat, Gujarat. Her qualification are she is registered dietitian and a certified diabetic educator, PG diploma in dietetics. Her work experience is 2 years in the field of nutrition in multi-specialty hospital. She is a life member of IDA and yearly member of IAPEN and member of Surat Nutrition Club. Her area of interest are nutrition in critical care, nutrition in renal diseases, and nutrition in IG track. Welcome, Meenakshi. Over to you for your session. Thank you so much, ma'am. You can share your screen now.
Is it visible? Yes. Okay. So we are going to discuss case studies. As ma'am has explained all the theoretical part, now we are going to in the practical part, right? So the first case study is carcinoma of buccal mucosa. अगर आपको बक्कल म्यूकोजा अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपको उसकी नॉर्मल एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज कहाँ पे बक्कल म्यूकोजा एक्चुअली होता है. Here is the picture कि बक्कल म्यूकोजा इज द लाइनिंग ऑफ चिक्स एंड द बैक ऑफ लिप्स. मतलब ये चिक्स की लाइनिंग है और ये लिप का बैक पोर्शन है. इनसाइड वेयर दे टच द टीथ, मतलब ये जो आपके टीथ को टच करता है वहां पे बक्कल म्यूकोजा होता है. अगर कार्सिनोमा हुआ है तो वो कैंसर सेल्स वहां पे ग्रो करेंगे और या तो ट्यूमर बनेगा, उसकी वजह से उसको कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस जनरली स्टार्ट्स इन द स्क्वैमस सेल्स. आपने जैसे फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि स्क्वैमस सेल्स दैट इज अ फ्लैट सेल्स, तो उस वहां से कैंसर की ग्रोथ शुरू होती है. दिस इज द पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर कि रियली में कैसा होता है ये. दिस इज द CABM, right? See, the patient के मुंह में कुछ दिख नहीं रहा है, but when we go inside तो ऐसा दिखेगा. This is again the second picture. ये outside portion है, किसी किसी को अंदर होता है, किसी किसी को बाहर होता है. अब causes क्या है कि पहले तो फर्स्ट टोबैको बहुत ज्यादा चूब करते हैं यार, लाइक 14 to 15 पैकेट, स्मॉल जो पैकेट्स होते हैं वो ज्यादा चू करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस है. सेकंड, एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल. एज पर द गाइडलाइंस कि से ज्यादा एक्सेस अगर हो जाता है देन देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग अ कार्सिनोमा ऑफ बक्कल म्यूकोजा. वीक इम्यून सिस्टम कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, then there is a chance of getting a cancer of buccal mucosa and human papilloma virus. ये एक टाइप ऑफ वायरस है, ये ऑटो इम्यून वायरस है, इसकी वजह से भी हो सकता है. दिस आर द कॉजेस. रिस्क फैक्टर्स अगेन आई हैव टोल्ड, टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग. अगर कोई ज्यादा सिगरेट स्मोक करता है देन ऑल्सो देयर इज अ चांस. एंड अगर एक्सेसिव सन एक्सपोजर टू योर लिप्स, मतलब लिप्स को ज्यादा यूवी रेज हार्म कर रहे हैं, that's why you can identify. Meenakshi? Yes, ma'am. Is there any disturbance from your back? Yes, ma'am. Actually, the construction work is going on. So. Okay, fine. So please try to speak थोड़ा louder करो ताकि वो पीछे का जो काफी आवाज आ रहा है. Okay, ma'am. Now getting? Yeah, it's Okay, fine. ma'am. Thank Okay. you. So again, I speak on that tobacco. अगर ज़्यादा tobacco chew करते हैं, then also alcohol अगर ज़्यादा excessively consume करते हैं तो भी होने के चांसेस है. सिगरेट स्मोक करते हैं, like 10 to 12 सिगरेट स्मोक करते हैं, then also there is a chances. एक्सेसिव सन एक्सपोजर टू द लिप्स. अगर लिप्स को सबसे ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है यूवी रेज से, इंफ्रारेड रेज से, तो भी कार्सिनोमा ऑफ बक्कल म्यूकोजा होने के चांसेस है. ओके. ओके, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? अगर कार्सिनोमा ऑफ बक्कल म्यूकोजा डायग्नोज हुआ है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो फर्स्ट इज अ ड्राई माउथ, मतलब आपका मुंह पूरा ड्राई हो जाएगा, सलाइवरी सिक्रीशन कम हो जाएगा. Second is oral communication with the sinuses. Like अगर आपके जो sinuses है, जैसे आपकी जो sensation taste buds है वो कम oral उसके साथ उसका communication कम हो जाएगा. Difficulty in speaking, drinking and eating. आपको बोलने में तकलीफ होगी, पीने में तकलीफ होगी, खाने पीने में तकलीफ होगी. Right? नाउ ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है? तो अगर हम उसको फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में डायग्नाइज हुआ है तो वो इम्यून थेरेपी में जाएगा. कीमोथेरेपी, दैट इज अ लाइक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन वो टाइप ऑफ ड्रग है, वो एडमिनिस्टर किया जाता है, दैट इज अ कीमोथेरेपी. रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में उसको बाहर से रेडिएशन दिए जाते हैं, लाइक रेज दिए जाते हैं, उसकी वजह से वो ट्यूमर शायद जल जाए, तो दैट इज अ रेडियोथेरेपी. एंड सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन कि अगर फोर्थ स्टेज और थर्ड स्टेज है तो हम उसको सर्जिकल इंटरवेंशन में शिफ्ट करेंगे. हियर इज द केस स्टडी कि एक पेशेंट था, उसका नाम था कमल कुमार टिकीवाला.
and his age was 51, height was 170, weight was 55 और BMI उसका less था, that is 19 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. IBW was 70. ये इधर मैंने IBW ऐसे कैलकुलेट किया, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, तो वो आपका IBW आएगा अगर वो मेल होता है तो. फीमेल के लिए अलग है. बैकग्राउंड उसका क्या था, वो सिटी में रहता था, इकोनॉमिक स्टेटस वाज मिडिल इनकम ग्रुप, मतलब उसकी उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, और वो सबसे डायग्नोसिंग फैक्टर था वो टोबैको च्यूअर था. नाउ कंप्लेंट्स ड्यूरिंग एडमिशन कि उसके जो पोर्शन था बकल म्यूकोजा में, उसमें डायग्नाइज हुआ मल्टीपल ग्रेइश ब्राउन टिश्यू, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था वैसा उसका डायग्नाइज हुआ. उसकी वजह से उसको एनोरेक्सिया था, वो खा नहीं पाते थे, अनएबल टू टेक फूड ओरली, वो लिक्विड डाइट पे थे सिंस 1 मंथ, और वेट लॉस उसका हुआ था सिंस 2 मंथ 6.5 kg ड्यू टू एनोरेक्सिया और अनएबल टू ईट. वाइटल्स उसके क्या थे, मतलब जब एडमिट हुआ तब हमने सब वाइटल्स चेक किए थे, तो उसमें फर्स्ट वाइटल वाज ब्लड प्रेशर, तो उसका 204/130 mmHg, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था. SpO2 दैट इज अ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हम इसलिए मेजर करते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, तो दैट इज 98% ऑन अ RA, दैट RA इज रूम एयर. RR is respiratory rate, that is 18 breaths per minute. इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 18 to 20. अगर आपके पास बुक और पेन है then write it. RR की नॉर्मल वैल्यू होती है 18 to 20 breaths per minute. पल्स रेट है 82 beats per minute और टेम्परेचर था 98.4 Fahrenheit, that is a normal. Now clinical symptoms. हमने जब पेशेंट को डायग्नोज किया, जब उसको देखने गए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखने मिले. तो फर्स्ट वाज एनोरेक्सिया, सेकंड वाज जेरोस्टोमिया. जेरोस्टोमिया मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ, एंड डिस्फेजिया मतलब स्वेलोइंग डिफिकल्टी. च्यूइंग डिफिकल्टी मतलब उसको खाने की भूख नहीं लग रही थी, ड्राई माउथ था, प्रॉब्लम निगलने में प्रॉब्लम हो रही थी. डिस्फेजिया मतलब उसको स्वेलोइंग में च्यूइंग डिफिकल्टी सॉरी, तो उसको चुबाने में प्रॉब्लम हो रही थी. इरिटेशन इन द माउथ व्हेन द स्पाइसेस वर कंज्यूम, मतलब अगर कोई चीज़ तीखी खा लेते थे तो उसको माउथ में इरिटेशन होती थी. क्यों? क्योंकि उसका कैंसर पोर्शन वहाँ पे ही था, इसलिए. स्टमक्स फील फुल विद द कंजप्शन ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्विड, मतलब अगर वो थोड़ा सा भी लिक्विड लेते थे तो उसका स्टमक फुल हो जाता था. वाई सो? बिकॉज ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस वाज एनोरेक्सिया. अगर हम वो उसको एनोरेक्सिया है और अगर हम उसको सबसे ज़्यादा लिक्विड फीड करेंगे तो उसको मन नहीं होगा, दे विल एंटर इनटू द वॉमिटिंग फेज. अनेबल टू ईट सॉलिड फूड्स एंड स्ट्रगलिंग इन पासिंग स्टूल्स, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन रहता था. नाउ डायग्नोसिस, उसका डायग्नोसिस एग्जैक्ट क्या हुआ, तो दैट इज राइट साइड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. बायोप्सी रिपोर्ट में अल्सरेटिव एक्सोफाइटिक ग्रोथ ओवर राइट बकल म्यूकोजा, मतलब जो राइट पोर्शन में जो उसका एक बकल म्यूकोजा पार्ट था उसमें ये ग्रोथ हुआ था. दिस इज द मेडिकल टर्म, अल्सरो एक्सोफाइटिक ग्रोथ. सर्जरी जो बकल म्यूकोजा की सर्जरी करते हैं उसका नाम है कमांडो सर्जरी. जैसे ही वो एडमिट हुआ उसके नेक्स्ट डे उसको सर्जरी में ले गए. तो जब भी वो आया था तभी वो NVM होके ही आया था. ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन दैट वाज ट्रैक्योस्टोमी. ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ट्रैक्योस्टोमी और उसका क्या किया था पोस्ट ऑप. रिफ्लेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस. नाउ मैम ने एक्सप्लेन किया था, दैट इज NRS 2002 एंड सेकेंड वाज मस्ट. तो मस्ट के हिसाब से माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, ये आपको लिखना है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मस्ट? दैट इट इज माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल. उसके हिसाब से एक्यूट डिजीज इफेक्ट स्कोर वाज 2, क्योंकि उसको एनोरेक्सिया था, वो खा नहीं पा रहे थे, उसको च्यूइंग डिफिकल्टी हो रही थी, सो उसकी वजह से उसको डिजीज इफेक्ट स्कोर 2 आया. एंड ही वाज एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब अगर हम न्यूट्रिशनली इंटरवीन नहीं करेंगे तो वो माल न्यूट्रिशन फेज में आ जाएंगे. नाउ दिस आर द बायोकेमिकल पैरामीटर्स.
डे 1 से जब वो एडमिट हुआ था तब उसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स क्या थे, दैट इज हीमोग्लोबिन, WBC, platelet count, serum creatine, sodium, potassium, chloride, magnesium and the calcium. This all are the serum, potassium, sodium, chloride, magnesium and calcium. So उसका hemoglobin level was normal, that is 13.9, 14.1, 13.6, 13.5. डे 5 में 12.6 हो गया, दैट वाज लो. डे 6 में 11.8, डे 7 में 11.2 एंड डे 8 में 10.2. नाउ WBC की नॉर्मल वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ सबकी नॉर्मल वैल्यूज, बट डे 1 में उसकी WBC ज्यादा थे. डे 2 में इट वाज लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड. डे 3 में अगेन इट वाज ऑन द लोअर साइड. डे 4 में बढ़ गया. डे 5 में भी बढ़ गया. डे 6 में कम हुआ कंपैरेटिवली. डे 7 में भी कम हुआ एंड डे 8 में अगेन केम बैक टू नॉर्मल. राइट. प्लेटलेट काउंट नॉर्मल थे बट वो बॉर्डर लाइन में लोअर साइड में थे. डे 2 में इट वाज नॉर्मल. डे 3 में भी नॉर्मल थे टिल डे 8. सीरम क्रिएटिनिन वो फ्लक्चुएट हो रहा था. सीरम क्रिएटिनिन दैट इज 1, 1.2, 0.8, 1.1, 1.3, 1, 1.2, 1.5. Now what are the sodium? These are the electrolytes. कि हमें कैसे मेंटेन करना है, राइट? So that was first day was 139, 138. 2 दिन के नहीं करे थे. 141, 142, 148 and 151. Now potassium 3.5, 4.2, 4, 4.4, 4.3, 4.5, 4.2, 4.4. क्लोराइड भी वैसे ही 101, 102 इंक्रीज हुआ. 2 दिन के नहीं किए थे, नॉर्मली इंक्रीज होता गया. एंड द मैग्नीशियम ऑन द डे 6 को करवाया था, दैट इज 1.8 एंड द कैल्शियम वाज 8.1. दिस आर द रेफरेंस वैल्यू कि अगर मेल होता है तो हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या होंगे, दैट इज 13.5 to 17.5 grams per deciliter. और अगर फीमेल होती है देन इट इज 12.5 to 15.5 grams per deciliter. WBC 4500 to 11,000 per DL, that is the deciliter. Platelet count 1.5 lakh to 4.5 lakh microliter of blood. सीरम क्रिएटिन इज 0.9 to 1.3 मिलीग्राम पर DL. तो हम देख सकते हैं, देखो इट वाज नॉर्मल, राइट? सीरम सोडियम वाज 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर, तो वो भी नॉर्मल है. एक लास्ट डे में ही बढ़ गया था, राइट? सीरम पोटेशियम 3.6 to 5.2 मिलीमोल पर लीटर, तो वो भी नॉर्मल है. क्लोराइड भी 96 to 106 मिलीमोल पर लीटर, तो वो भी नॉर्मल है. मैग्नीशियम 1.7 to 2.2 मिलीग्राम पर DL एंड सीरम कैल्शियम वाज 8.6 to 10.3 मिलीग्राम पर DL, तो वो दोनों भी नॉर्मल थे. नाउ इनटेक आउटपुट हम जनरली दिस इनटेक इज द फ्लूइड इनटेक एंड दिस आउटपुट इज द यूरिन आउटपुट. जनरली आइडियली जितना हम इनटेक लेते हैं उतना हमारा आउटपुट होना चाहिए. अगर आउटपुट नहीं है देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस वजह से आउटपुट नहीं आया है. आइदर दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द अदर मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज और नॉट, राइट? तो उसके 8 डेज के इनटेक आउटपुट है. धीरे धीरे उसका आउटपुट अच्छा होने लग गया, मतलब बैलेंस, मतलब अगर 5050 इसका इनटेक है, 2620 उसका आउटपुट है, तो ये उसका पॉजिटिव हुआ, मतलब इसके बॉडी में इतना फ्लूइड ऑलरेडी है. दूसरे दिन ऐसे ही सेम देखो उसका 1889 हुआ, राइट? तीसरे दिन भी सेम हुआ, बाद में धीरे 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 डिक्रीज होता गया. नाउ डायट्री रिकॉल. उसके डायट्री रिकॉल से हमें क्या पता चलता है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एज द डायटिशियन, कि अगर हमें किसी कंसल्टेंट ने ऐसा बोला है कि वी हैव टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ कैलोरी, लाइक फॉर एग्जांपल 2000 किलो कैलोरी देनी है एंड 80 to 95 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो वी हैव टू फर्स्ट टेक द डायट्री रिकॉल ऑफ द पेशेंट कि वो
उसका इंटेक क्या है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. वी कांट जंप ऑन इट कि भाई हमें इतना बोला है तो देन वी हैव टू गिव इट फॉर श्योर. नॉट पॉसिबल बिकॉज पेशेंट इज नॉट गोइंग टू टेक दिस मच अमाउंट. अगर उसकी इंटेक ही इतनी नहीं है तो वो दूसरा क्या लेगा, राइट? सो फर्स्ट 7 AM उसका 100 ml मिल्क, वो भी अमूल गोल्ड लेते थे, राइट? 8 बजे ब्रेकफास्ट में उसने राब लिया था, अगेन मिल्क वाज एडेड. 9 बजे फ्रूट जूस लिया था ऑरेंज का. 10 बजे मिल्क लिया था विथ 5 to 6 क्रश्ड आलमंड और मिल्क था अमूल गोल्ड. 12 बजे लंच लिया था, उसमें एक पतली सी दाल ली थी और वाटरी राइस, एकदम सॉफ्ट राइस 15 ग्राम्स लिए थे. 3 बजे स्नैक के टाइम पे अगेन टी ली थी विथ शुगर प्लस 2 मारे बिस्किट डिप्ड इन द टी, मतलब डिप करके उसने लिया था. 5 बजे कोकोनट वाटर लिया था. 6 बजे अगेन पोमोग्रेनेट का फ्रूट जूस. 8 बजे सॉफ्ट खिचड़ी एंड कड़ी, मतलब एकदम राइसी, मतलब एकदम वाटरी खिचड़ी प्लस कड़ी. एंड 9:30 PM सोने से पहले इट वाज 100 ml मिल्क विथ हल्दी, मतलब हल्दी वाला दूध लिया था उसने. सो उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन जो मैंने किया है वो कितना आया, तो दैट वाज 101 किलो कैलोरीज. दैट वाज वेरी लेस, इसलिए उसका वेट राइट. प्रोटीन was 31.82 grams, तो वो 12% था. मतलब द इंटेक was very very less. प्रोटीन का इंटेक बहुत ही कम था. फैट इंटेक was 31.55 grams, so वो ज़्यादा था, राइट? एंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक was 138.55%. सो कंपैरिजन टू 101 किलो कैलोरीज अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो प्रोटीन का इंटेक कम था. सोडियम इंटेक, ऐसे जैसे मैम ने बोला था कि वी हैव टू कैलकुलेट सोडियम एंड पोटेशियम. दिस आर द इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स when we are going to discuss the patient who are suffering from going into the surgery, right? तो सोडियम था 1389 मिलीग्राम, दैट इज 60 MEQ. अगर हमें MEQ में कन्वर्ट करना है तो सोडियम डिवाइडेड बाय 23, तो वो आपका MEQ में आंसर आएगा. अगर आपके पास बुक है, राइट इट डाउन, milligrams of sodium divided by 23. अगर पोटेशियम कैलकुलेट करते हैं then 555 milligrams divided by 39, then वो आपका 14.2 मिली इक्विवेलेंस आंसर आया, राइट? एंड टोटल फ्लूइड, मतलब जो उसने लिया था उसमें उसका टोटल फ्लूइड काउंट किया तो उसका 1300 ml फ्लूइड जा रहा था. Now, what the medications are given in hospital? This we all are discussing post-op, right? कि post-op के बाद उसकी कौन सी medications जा रही थी. The first was injection Zostem. Zostem is a antibiotic, मतलब जो bacterial infections अंदर होते हैं उसको मारने के लिए उसको antibiotics दिए जाते हैं. The route was IV. IV मतलब intravenous, and the dose was BD. BD मतलब twice in a day. इंजेक्शन अमीकासिन, इट इज ऑल्सो एन एंटीबायोटिक, उसको भी IV दिया जा रहा था एंड वो दिन में एक ही बार दिया जा रहा था. मेट्रोगिल अगेन इट इज एन एंटीबायोटिक और उसको दिन में 3 बार दिया जा रहा था, दैट इज थ्राइस इन अ डे. BD is twice in a day, OD is once in a day, TT is thrice in a day. उसका भी रूट IV था. इंजेक्शन पेंटोसिड, पेंटोसिड इज द एंटासिड, मतलब अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जैसे ये एंटीबायोटिक्स जाएगी तो उसके साथ ये हमेशा पेंटोसिड जाएगा. व्हाई? बिकॉज एंटीबायोटिक्स की साइड इफेक्ट ही होती है वॉमिटिंग एंड द नोजिया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको एंटासिड दिए जाते हैं कि ज्यादा HCl सिक्रीट ना हो और पेशेंट वॉमिटिंग और नोजिया के फेज में एंटर ना हो, राइट? तो उसको भी BD में दिया जा रहा था. MCID again no vomiting and the nausea, right? PCM अगर उसको फीवर आता है पोस्ट ऑप बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन एंटीपायरेटिक वो भी दिया जाएगा, दैट इज TDS thrice in a day and IV was the route. RCC injection Lasix, मतलब RCC is a red cell concentrate, उसका फुल फॉर्म है रेड सेल कॉन्सेंट्रेट, दैट इज द आउटसाइड HB. जैसे हम ब्लड बैंक में से जो ब्लड मंगवाते हैं उसको RCC कहा जाता है, राइट? प्लस डायूरेटिक्स, दैट इज द यूरिन इंक्रीज करने के लिए, मतलब जो आउटपुट हमारा कम था तो वहां पे उसने लेसिक्स दिया तो वो यूरिन ज्यादा आएगा, राइट?
स्टेट मतलब इमीडिएट, जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी हीमोग्लोबिन लो आया, देन वी हैव टू गिव आरसीसी, राइट। इंजेक्शन एनटीजी, जैसे हमने वाइटल्स में देखा था कि ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा आ रहा था, तो नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी का फुल फॉर्म है नाइट्रोग्लिसरीन, तो उसको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द, इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर, राइट। इंजेक्शन ऑप्टीन्यूरॉन, ऑप्टीन्यूरॉन इज अ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, राइट, उसको भी दिया जाता है, दैट वाज अ ट्वाइस इन अ डे 1 एम्प्यूल। वो आप जब ऑप्टीन्यूरॉन का इंजेक्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, कितने एम्प्यूल में कितना ml बी कॉम्प्लेक्स और कितना ml का वो एक इंजेक्शन होता है, दिस इज दिस अमाउंट ऑफ ऑप्टीन्यूरॉन, राइट। टेबनीकार्डिया, अगेन इट इज अ एंटी हाइपोटेंसिव Meenakshi, मेडिकेशन। यस मैम। students are saying that your voice is very low. मैम नाउ गेटिंग? Yeah, now it's proper. Thank you. Okay ma'am, okay. टेबनीकार्डिया, इट इज अगेन एन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, सो वो भी उसको आरटी में दी जा रही थी बिकॉज इट इज अ टैबलेट, राइट। तो टैबलेट को उसने क्रश किया एंड दे हैव एंटर वाया राइल्स ट्यूब रूट, और उसको भी इमीडिएट मतलब जब भी जरूरत होती है, जब भी बीपी ज्यादा आता है तो वो दिया जाता है। डिस्पर्जाइम इज अ पेन किलर, क्योंकि सर्जरी हुई है तो उसको पेन किलर भी दिया जाएगा। इकोस्प्रिन एंटीप्लेटलेट की अपोस्ट ऑफ, अगर क्लॉट्स नहीं होने देने हैं देन वी हैव टू गिव एंटीप्लेटलेट्स। एंड द लिक्विड क्रेमाफिन प्लस, दैट इज द लेक्सेटिव, मतलब स्टूल पास नहीं हो रहा है तो उसको ईज करने के लिए लेक्सेटिव दिए जा रहे हैं। नाउ दिस आर द वाइटल एनालिसिस, मतलब SpO2, टेम्परेचर एंड द ब्लड प्रेशर। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर दिए जा रहे हैं, राइट। SpO2 was 96 on a 4 liter of O2. ट्रेक्योस्टोमी जैसे मैंने बोला था, तो ट्रेक्योस्टोमी किया, वहां से उसको 4 लीटर मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब मैकेनिकल ऑक्सीजन दिया जा रहा था, तब उसका SpO2 आ रहा था 96, टेम्परेचर वाज 98.5 एंड द ब्लड प्रेशर वाज 165 by 96 mmHg, राइट। तो वैसे ही पूरे 8 दिन में उसका सेम वाइटल एनालिसिस हुआ था, देयर वाज अ फ्लक्चुएशन, और वो हर एक घंटे में करते हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड ऑल द SpO2, सो मैंने एक ऐड किया है, बट व्हेन यू विल गोइंग फॉर द प्रैक्टिस तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किस हिसाब से वो लोग O2 सेट करते हैं। जैसे उसका 92 96 आया तो उन लोग ने कम कर दिया, बट 97 आया तो 4 लीटर बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर इश्यूज, राइट। नाउ ट्रांजिशन ऑफ डाइट, कि फर्स्ट डे वो आया था तो उसको तुरंत सर्जरी में लेके गए, उस NBM होके ही आया था। नाउ सेकेंड डे उसको नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग स्टार्ट कर दी थी, जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया था, देयर आर डिफरेंट रूट्स लाइक नेजोगैस्ट्रिक, नेजोडियोडेनल, नेजोजेजुनल, तो इन लोग ने नेजोगैस्ट्रिक रूट सिलेक्ट किया था, उसमें उन लोग ने दिया था 50 ml 2 hourly एंड द डाइट वाज हाई प्रोटीन डाइट, राइट। थर्ड डे वॉज 100 ml, हमने ज्यादा स्टेप अप किया बिकॉज द टॉलरेंस लेवल वॉज गुड। अगर हम 50 ml दे रहे थे तो वो अच्छे से टॉलरेट कर रहे थे, तो हमने 100 बढ़ाया, 100 उससे टॉलरेट हुआ, then the next day we have given 150 ml 2 hourly, or again it is a high protein. Fifth day, sixth day and the seventh day we have continued to 150 ml. After that हमने सातवें दिन 200 ml किया, and on the eighth day we have given again 200 ml 2 hourly. दिस इज द हॉस्पिटल डाइट प्लान, कि जैसे मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, दिस इज द सैम्पल मेन्यू। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हैरीज बेनेडिक्ट इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, जब भी आप राइल्स ट्यूब फीडिंग या कोई भी डाइट प्लान करते हो, देन यू हैव टू कैलकुलेट BEE, दैट इज द बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर। लिख लो आप, basal energy expenditure for the male, it is 66.4 plus 13.7 into weight, it is usual body weight, right, plus 5 into height in centimeter, जो आपकी height आई है वो आपको multiply करनी है, minus age, मतलब 6.8 into age in years, जो उसकी age है वो आपको minus करनी है। So this is the example, like 66.4 plus 13.7 into 55 plus 5 into 170
minus 6.8 into 51. तो ये मेरा आंसर आया, that is 1324 किलो कैलोरीज, that is the basal energy expenditure. मतलब ये उसकी नॉर्मल, अगर वो भी कुछ काम भी नहीं करते हैं, योर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस, तो आपकी बॉडी जो एनर्जी यूटिलाइज करेगी, ये उसका आंसर है. इतनी कैलोरीज उसको रिक्वायर्ड तो है ही, राइट. नाउ TEE, दैट इज टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर. उसकी फॉर्मूला है BEE into 1.2, दैट इज द स्ट्रेस फैक्टर. मतलब बेसल एनर्जी उसकी हुई है, बट अगर 1.2 उसका स्ट्रेस लेवल, बिकॉज पोस्ट ऑप सर्जरी हुई है तो उसको स्ट्रेस तो आएगा, फिजिकल स्ट्रेस है, राइट. तो उसका 1.2. अगर 1.2 हमें लेना है जब पेशेंट नॉन मोबिलाइज होता है, अगर मोबिलाइज होता है देन वी हैव टू टेक 1.3, राइट. तो इसकी कैलोरीज आई 1588 किलो कैलोरीज. इतनी हमें कैलोरीज उसको देनी ही है, इससे कम नहीं चलेगी, राइट. इससे ज्यादा हमें देनी है. सो दिस इज द मेन्यू प्लानिंग, कि हम कैसे मेन्यू प्लानिंग करते हैं. तो हमने 6 बजे 200 ml मिल्क लिया था, उसके अंदर 1 चम्मच हनी डाला एंड 1 चुटकी हल्दी डाली. हल्दी हमने फॉर द एंटीऑक्सीडेंट पर्पसेस और सम एंटीबैक्टीरियल पर्पसेस के लिए टर्मरिक डाला था. 8 बजे दिस इज द प्रोटीन सप्लीमेंट. प्रोटीन सप्लीमेंट मैं आगे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में. तो वो इसकी स्टैंडर्ड सर्विंग है, तो वही मैंने दिया है. 8 एंड 10 बजे. 12 बजे अगेन मैंने ग्रीन ग्राम होल सूप इसको बनाया था, और उसके अंदर 1 चम्मच हनी डाला था, 1 चम्मच ऑयल डाला था, 1 चुटकी हल्दी, सॉरी 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 पिंच ऑफ टर्मरिक, राइट. ये पूरा बना के बाद में हमें फीड करना है. 2 बजे एंड 4 बजे अगेन देयर वाज अ प्रोटीन सप्लीमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. 6 बजे अगेन देयर वाज अ ग्रीन ग्राम होल सूप. दिस इज द सेम फॉर्मूला व्हिच वी हैव यूज्ड. एंड 8 और 10 बजे अगेन देयर वाज अ प्रोटीन सप्लीमेंट एंड 12 बजे 200 ml मिल्क. दिस प्लानिंग इज फॉर 200 ml 2 आवरली. ये मैंने एक सैंपल आपको दिखाया है. अब टोटल मैंने कितने न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड किए थे, तो 2460 किलो कैलोरीज. हमारी आई कितनी थी 1588 और गई कितनी 2460. सो हमने ज्यादा दी है, तो हम उसका वेट इंक्रीज होने के चांसेस है. अगर हम उस 2460 डिवाइडेड बाय वेट करना है, जो उसका यूजुअल बॉडी वेट है, उसका यूजुअल बॉडी वेट कितना था 55, तो आपका आंसर आएगा 44 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट. ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है. प्रोटीन भी 119.6 ग्राम है, दैट इज 19.4%, और डिवाइडेड बाय 119.6 डिवाइडेड बाय 55, दैट इज द यूजुअल बॉडी वेट. तो 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट उसका जाएगा. Fat was 22.97%. Carbohydrate was 345 grams, that is the 56%. Sodium हमें calculate करना है. Electrolytes is very important when we are going to calculate the Ryle's tube feeding. So 2813 milligram, that is 122 MEQ. Potassium was 2308, that is the 59 MEQ. टोटल फ्लूइड, मतलब उसको फ्लूइड कितना गया, दैट इज 2240 सॉरी एंड किलो कैलोरी पर ml. मतलब जो भी आप कैलोरीज देते हो उसके डिवाइडेड बाय ये टोटल फ्लूइड करना है, तो आपका ये आंसर आएगा, दैट इज द किलो कैलोरी पर ml. आइडियली 1 किलो कैलोरी पर ml होना चाहिए जब भी आप राइल्स ट्यूब फीडिंग प्लान करते हो. तो दिस इज द सप्लीमेंट विच आई हैव यूज्ड, मतलब जो मैंने प्रोश्योर लिखा था, दैट इज दिस इज द सप्लीमेंट विच इज गिवन बाय द एबट, राइट. उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स है. दिस इज द स्टैंडर्ड सर्विंग 190 ml वाटर प्लस 9 स्कूप, और उसकी एनर्जी है 303. अगर मैं उसको 303 को 190 के साथ डिवाइड करती हूँ तो उसका आंसर आएगा 1.26 किलो कैलोरी पर ml. Now protein was 15.2 grams. Sorry. Fat was 50. Carbohydrate was 101. Sodium 328. Potassium 251. Icosapentaenoic acid. This is the part of fat.
मतलब जो ओमेगा 3 हम बोलते हैं दैट इज EPA, वो सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट में जरूरत होती है। व्हाई? बिकॉज उसके इन्फ्लेमेटरी को रिड्यूस करने में ओमेगा 3 क्या काम करता है? फॉर टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करता है। तो इक्विजापेंटेनोइक एसिड 2 grams है एंड द टोटल वॉल्यूम आफ्टर प्रिपरेशन मतलब 237 टोटल हमारा बनता है। अगर हम 190 ml लेते हैं प्लस 9 स्कूप देते हैं तो प्रिपरेशन वुड बी 237 ml। फाइनल इंटरप्रिटेशन, डे 9 ही टुक डिस्चार्ज विद द सेम नेजोगेस्ट्रिक डाइट प्लान जो हमने पहले मैंने दिखाया था, वही नेजोगेस्ट्रिक डाइट प्लान से वो डिस्चार्ज हुआ। उसके वाइटल सारे नॉर्मल हो गए। He was breathing normally without any mechanical ventilation support. मतलब उसका जो ट्रैकेस्टोमी किया था वहां से जो मैकेनिकल ऑक्सीजन जा रहा था वो निकाल दिया, वो नॉर्मली ब्रीथ करने लगा था। वेट वाज आल्सो इंक्रीज, लाइक 55 उसका वेट था, 58 हुआ, मतलब 3 kg उसका स्टेप अप हुआ विद इन 8 days एंड ही वाज टॉलरेटिंग द बोलस फीडिंग वेरी वेल। नाउ दिस इज द केस स्टडी 2। जस्ट अ मोमेंट नाउ। This is the second case, that is a total knee replacement. First, total knee replacement is a surgery which is performed by orthopedic surgeon. मतलब जो orthopedic doctors होते हैं वही ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। उसको दूसरा नाम नी आर्थ्रोप्लास्टी भी कहा जाता है। वह मतलब कि किसी ने डायग्नोसिस में नी आर्थ्रोप्लास्टी लिखा है तो डोंट गेट मिसअंडरस्टैंड, उसको नी रिप्लेसमेंट ही बोला जाता है। इट इज परफॉर्म टू रीसर्फेस अ नी डैमेज बाय द आर्थराइटिस। मतलब आर्थराइटिस हुआ है तो उसकी वजह से जो बोन्स डैमेज हुआ है तो उसको रीसर्फेस करने के लिए उसको ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। उसमें वो लोग क्या यूज करते हैं? फर्स्ट इज द मेटल और या तो प्लास्टिक, दोनों में से कोई एक चीज वो लोग यूज करेंगे। दिस इज द पिक्चर, देखो ये पूरा डैमेज बोन्स है, राइट? ये फीमोरल पार्ट है, ये टिबियल पार्ट है लेग का, तो ये दोनों चीज डैमेज हो चुकी है, राइट? तो उन लोग ने क्या किया, ये पूरा प्लास्टिक डाल दिया इधर। दिस इज द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, राइट? परफॉर्म हो गई है। एंड द सेकेंड पोर्शन, ये पूरा मेटल उन लोग ने यूज किया है। फ्रंट व्यू मतलब ये पूरा आपका लेग है, अगर आप उसको ऐसे देखोगे तो ये पोर्शन जो सेकेंड वाला पोर्शन है वो आपको दिखेगा कि ये उन लोग ने कैसे उसको कवर अप किया है। और ये पैटेला है, उन लोग ने उसमें भी मेटल डाल के उसको सेट किया है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, TKR क्यों किया जाता है, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस? तो फर्स्ट वाज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब जो ऑटो इम्यून होती है, राइट? उसकी जो नीज में सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से TKR किया जाता है। सेकेंड वॉज ओस्टियोआर्थराइटिस, मतलब आपके बोन्स बहुत ही ज्यादा वीक है तो उसकी वजह से भी TKR होने के चांसेस है। नी इंजरी, कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा TKR। एंड द ओबेसिटी, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वो पूरा वेट आपके पैर में आएगा तो उसकी वजह से आपके बोन सबसे ज्यादा वेयर एंड टेयर हो गए तो उसकी वजह से भी TKR करने के चांसेस है। Now this is case study where she was a female, Nuruneza Khatun, and she was 53 years. Her height was 162, weight was 70, and the BMI was little bit on the higher side, 26.7. तो उसका overweight में categorize होता है। IBW 57। मैंने मेल में डिस्कस किया था हाइट इन सेंटीमीटर -100, इधर फीमेल में आएगा हाइट इन सेंटीमीटर -105, तो वो आपका आंसर आएगा, राइट? तो मतलब 162 -105 तो आपका 57 आंसर आएगा। बैकग्राउंड वर्ड, शी वाज स्टेइंग इन द विलेज एंड द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका पुअर इनकम ग्रुप था। कंप्लेन क्या थी, उसको 2 साल से नी पेन हो रहा था, राइट नी पेन, बट वो इतना ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं था, मतलब इतना ज्यादा एग्रेवेटिव नहीं था, बट 1 साल से उसका पेन बढ़ गया तो उसकी वजह से उसको बैक पेन भी हो रहा था बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग मोर, और उसकी वजह से उसको खाने का भी मन नहीं होता था, दैट वाज एनोरेक्सिया।
नाउ वाइटल्स ड्यूरिंग एडमिशन, मतलब जब वो एडमिट हुई थी तो उसके हमने वाइटल्स क्या देखे थे. द ब्लड प्रेशर वाज लिटिल ऑन द हायर साइड, दैट इज 160/90. SpO2 was normal. Our respiratory rate, that is the 20 beats per minute, और pulse rate थे 82 beats per minute, और temperature was also normal. Past history, मतलब जब हम उसके पास गए तो उसकी कौन सी कोमॉर्बिडिटी साथ में थी. तो फर्स्ट वाज लेफ्ट टीकेआर, मतलब उसका ऑलरेडी 1 साल पहले टीकेआर हो चुका था. दिस इज द फ्रेश केस जो मैंने लिया है, और इसका अभी 1 साल के बाद वो राइट टीकेआर के लिए आए हैं. 1 साल पहले उसका लेफ्ट टीकेआर ऑलरेडी हो चुका था. हाइपरटेंशन थी, हाइपरटेंसिव थी एंड हाइपोथायरोडिज्म, मतलब उसके जो थायराइड हार्मोन्स थे वो कम सीक्रेट हो रहे थे. उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी डिस्टर्ब थी. राइट, डायग्नोसिस में उसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नाइज हुआ, प्लस ओबेसिटी, एंड सेकेंड वाज सर्जिकल इंटरवेंशन, राइट नी रिप्लेसमेंट, मतलब वो राइट टी केयर के लिए आई थी. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस according to MUST, that is the malnutrition universal screening tool. तो again उसका acute disease effect score 2 आया, and possibility of being malnourished, मतलब इस फेज में अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते then वो malnourishment में शिफ्ट हो जाती, वो फेज में वो एंटर हो जाती. These are the biochemical parameters. उसके सिर्फ 3 days के ही इन्वेस्टिगेशन किए थे. That is the hemoglobin was 9.6, which was very low, 9.10 and 7.9. WBC was 9,300, then 14,200 and 10,300. Right? Platelet count उसके पहले ज्यादा थे, बाद में कम होते गए, मतलब नॉर्मल होते गए. PTINR was 12 and 15, वो भी मतलब 12 उसका नॉर्मल था, बट 15 उसका बढ़ गया. सीरम क्रिएटिनिन 0.8, 0.95, that was normal. Sodium was 139 and 145. Potassium was 4.4 and 3.9. Sodium chloride, serum chloride was 102 and 108, and protein was 8.6. वो एक ही दिन में करवाया था. Okay, this was serum uric acid was 4.6, वो नॉर्मल था. RA फैक्टर, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो RA फैक्टर किया जाता है, दैट इज द सीरम RA फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर कि वो कितना है उस हिसाब से रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज होता है. तो उसका नॉर्मल वैल्यू है 0 to 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, और उसका था 100. Albumin was low, that was 3.3, and serum globulin was higher, 5.3. Albumin to globulin ratio was 0.62. Ideally 1 होना चाहिए. अगर आपका albumin कम होता है and globulin gets increased, तो obvious है कि आपका albumin globulin ratio कम आएगा. Ideally ये 1 होना चाहिए. What are the clinical symptoms? मतलब जब हम उसके पास गए तो उसके सिम्टम्स क्या थे. तो फर्स्ट वॉज सार्कोपेनिया, मतलब उसका वेट ज्यादा था बट द मसल वॉज लेस, उसका जो फैट पोर्शन था वो ज्यादा था. अनेबल टू वॉक, मतलब उसका वेट ज्यादा था, उसको पैर में तकलीफ हो रही थी तो वो चल नहीं पा रही थी. थर्ड वॉज लो एल्ब्यूमिन लेवल ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, मतलब आर्थराइटिस था तो उसका एल्ब्यूमिन कम हुआ. राइट, पहले ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन लेवल्स, हीमोग्लोबिन कम थे तो वो ऐसे फीकी दिख रही थी. फटिंग, मतलब वो थकी, मतलब उसको थक जाती थी वो जल्दी, ऐसे सोने का मन होता था उसको. और डिजीनेस, मतलब कहीं चैन नहीं हो रहा था उसको, बस इरिटेशन होती थी. दिस वाज द डाइटरी रिकॉल कि 7 बजे वो टी लेती थी, वो भी बफेलो मिल्क का. राइट, 10 AM ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 मारे बिस्किट और 2 मोनेको बिस्किट लेती थी और कुछ नहीं लेते थे. 12 बजे लंच डायरेक्ट ले लिया, मतलब 2 घंटे का गैप लेके और फिर से उसने लंच लिया. उसमें राइस उसका सबसे ज्यादा होता था. रोटी 6 इंच की 4, मतलब 4 रोटी वो लेती थी. उसके साथ उसने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब 1/4 कप जितना ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते थे. 4 बजे अगेन स्नैक में टी लेते थे. 6 बजे मिल्क और प्लस 1 टीस्पून शुगर. सुबह वो बिना शुगर की लेते थे एंड इवनिंग में वो शुगर के साथ लेते थे. 9 बजे अगेन डिनर में वो रोटी, सब्जी एंड राइस. राइट,
और उसकी एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन इट इज 1564 किलो कैलोरीज। प्रोटीन आया 41.33, वो अगेन इट वाज ऑन द लोअर साइड। फैट वाज 27.34, 16% फैट भी कम था, बट कार्बोहाइड्रेट इनटेक वाज मोर 70%, तो वो बहुत ही ज्यादा है। मेडिकेशन क्या क्या दी गई थी? फर्स्ट वाज टेप पेंटोसेट, राइट? तो वो पर ओरल, मतलब डो P/O इज इक्वल्स टू पर ओरल BD, दैट इज अ ट्वाइस इन अ डे। दिस इज एंटासिड, राइट? टेप सेटेनिल, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा था, वो हाइपरटेंसिव की पेशेंट थी, तो उसको एक बार दिन में दिया जाता था। टेप यूथाइरोक्स, दैट इज अ हाइपोथायरॉइडिज्म, जो उसके थायराइड हार्मोन्स है और जो उसकी डिजीज कंडीशन है उसके हिसाब से उसको यूथाइरोक्स दी जाती थी। मेथोट्रेक्सेट, ट्रेक्सेट एंड फॉलिक एसिड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दी जाती थी। इथोसाइन, दैट इज अ पेन किलर, एंड कैपल्यूब्रिजोइन, दैट इज द ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन एक काइंड ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करता है, दैट इज द ग्लूकोजामाइन। एंड टैबजेपिस, मतलब उसको अगर एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं आफ्टर सर्जरी तो उसको टैबजेपिस दिया जाता था, दैट वाज द OD। नाउ ट्रांजिशन कि डे 1 में उसका फुल HPD था, मतलब नॉर्मल डाइट वो लेती थी, ठीक है। डे 2 उसको अगेन NBM रखा गया फॉर द सर्जरी। डे 3 उसका सॉफ्ट HPD एंड द लिक्विड दिया था। डे 4 सॉफ्ट HPD लिक्विड दिया था, एंड डे 5 फुल HPD लिक्विड दिया था। लिक्विड हम क्यों देते हैं? पोस्ट ऑफ दिस देयर इज अ सर्टेन रीजन कि आफ्टर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, मतलब जब भी सर्जरी परफॉर्म होती है तो वाटर बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लिक्विड देते हैं। This is the hospital diet. Again, there is the Harris-Benedict equation. जब भी हम प्लान करते हैं, this is the formula which you have to include, और उसके हिसाब से ही आपको फॉलो करना है। तो फीमेल BEE का अलग है, मेल का भी अलग था, फीमेल का भी अलग है। 655 प्लस 9.6 इंटू वेट, ठीक है। इधर मैंने IBW लिया है बिकॉज वो ओवरवेट थी। अगर ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी में आती है देन यू हैव टू टेक IBW। अगर वो अंडरवेट की कैटेगरी में आता है then you have to take usual body weight, right? Plus 1.8 into height in centimeter minus 4.7 into age in a years. आप लिख लीजिएगा, ये आपको काम आएगी, you have to write it, right? And this was the answer, 77.2 किलो कैलोरीज। दिस इज द बेसल एनर्जी, मतलब वो कुछ भी काम भी नहीं करेगी, रेस्ट करेगी तो भी उसकी इतनी कैलोरीज यूज होने वाली है। दिस इज द TEE BEE into 1.2। अगर फिर भी वो इधर मोबिलाइज नहीं थी, इसलिए हमने स्ट्रेस फैक्टर 1.2 लिए है। सो द कैलोरी वाज 932 किलो कैलोरी, ये टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसका। दिस इज द सैंपल मेन्यू। मैंने सॉफ्ट HPD एंड लिक्विड प्लानिंग किया है। तो 7 बजे मैंने मिल्क दिया था, वो बफेलो मिल्क लेती थी, वहां से मैंने रिप्लेस करके उसको अमूल ताज़ा दे दिया। 7:30 बजे उसको ब्रेकफास्ट दिया, अगेन वेजिटेबल उपमा प्लस बटर मिल्क 150 ml एंड 1 एग वाइट बॉइल्ड। एग वाइट बॉइल्ड मैंने एल्ब्यूमिन इंक्रीज करने के लिए दिया था, राइट। 9 बजे अगेन वेजिटेबल कर्ड रायता प्लस 1 एग वाइट बॉइल्ड। 10 बजे लेमन वाटर दिया था प्लस 1/4 कप वेजिटेबल स्प्राउट्स। शायद कल महाराजश्री मैम ने आपको बताया था कि अगर हम आयरन लेते हैं उसके साथ अगर हम विटामिन C लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। सो वेजिटेबल स्प्राउट इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड लेमन वाटर इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। सो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड विटामिन C। 1 PM लंच लिया था, उसमें उसने वो 50 ग्राम लेती थी, मैंने उसका 30 ग्राम कर दिया। वेजिटेबल ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मैंने हटा के उसको वेजिटेबल B सब्जी कर दी। दाल दिए बिकॉज ऑफ प्रोटीन सोर्स एंड कर्ड भी उसको दिया। ये बिकॉज सॉफ्ट है, वो फुल डाइट नहीं खा सकती है, सो मैंने उसको सॉफ्ट दिया है। 4 बजे मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट दिया था 150 ml मिल्क प्लस 2 स्कूप कैबीप्रो, राइट। ये कैबीप्रो मैं आपको डिस्कस करती हूँ वो है क्या एग्जैक्टली। 6 बजे 150 ml वेजिटेबल मूंग सूप प्लस मैंने 1 एग वाइट बॉयल दिया था। 8 बजे अगेन राइस वेजिटेबल सब्जी दाल एंड द कर्ड, सेम एज द लंच।
10 बजे सोने से पहले उसको मिल्क दिया था 100 ml। सो अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो उसकी एनर्जी आई 1290, दैट इज द 22 किलो कैलोरी पर केजी IBW। इधर आपको IBW लेना है। प्रोटीन इज 64.65 grams, 20% एंड 1.1 ग्राम पर केजी IBW। तो उसका प्रोटीन भी आ गया, कैलोरी भी अच्छे से जा रही है। फैट इज 43.45 grams, that is the 30%, and carbohydrates 166 से 50%। उसका 70% इंटेक था, मैंने उसका 50 कर दिया। एंड द टोटल इंटेक ऑफ फ्लूइड वाज 1150 ml फ्रॉम फूड। मतलब फूड में से इतना जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वाटर यू हैव टू कैलकुलेट। जैसे मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था 30 ml इंटू बॉडी वेट, तो वो जो आता है उसमें से इतना माइनस करके जो भी आपका वाटर बचता है वो उसको आपको एडवाइस करने हैं। दिस इज द कैबीप्रो न्यूट्रिएंट कैबीप्रो की उसकी सर्विंग साइज क्या है। अगर हम 200 ml वाटर लेते हैं देन यू हैव टू ऐड 2 स्कूप, पर अगर आपको 100 ml देना है देन यू हैव टू टेक 1 स्कूप। 150 ml मिल्क में आपको 2 स्कूप डाल सकते हो। वाटर लेते हो देन यू हैव टू टेक 200 ml, मिल्क लेते हो देन यू हैव टू टेक 150 ml। उसकी एनर्जी है 86, प्रोटीन इज 10, फैट इज 0.7, carbohydrate is 9.8 grams, sodium is 55.2, potassium is 164 and total fluid is 200 ml by 200 ml या तो 150 ml milk। डिस्चार्ज डाइट आपके लिए होमवर्क है, दैट इज अ फुल डाइट यू हैव टू प्लानिंग along with the liquid and the high protein। so मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स दी है, दैट इज 1425 किलो कैलोरीज, प्रोटीन इज 74, फैट इज 15 to 30%, कार्बोहाइड्रेट इज 50 to 55% एंड टोटल फ्लूइड शुड बी 1995 ml। तो ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। Meenakshi, can you show the details of the patient so that they can do this? Yeah, ma'am. This is the requirements. Yeah. अगर आपको हाइट वेट चाहिए तो वो भी मैं दे देती हूँ आपको। Students, I have posted in the group also. You can see from there. Actually, you can continue. I have already posted in the group. Idil, you want to ask something? Any questions? No, ma'am.
questions, students, regarding the case studies? Ma'am, wanted to ask Meenakshi, how do you decide which supplement to give and आपकी वॉइस बहुत कम है. hello? Yes. Hello. Yes, ma'am. Shazia, ma'am. I just wanted to ask, how do you decide which supplement to give? Ma'am, actually, I'm not getting your voice, ma'am. हम आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है. I think the speakers were full and Ma'am, we can't hear you. अभी can you hear? बहुत तो कम. बहुत ही ज्यादा कम है मैम आपकी वॉइस. Can you hear now? अभी भी नहीं आ रही? नो मैम. Volume तो सही है. Okay, I'll just write it down. Yeah, any student want to ask? सबको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन करते हैं फीड्स की? Everybody have noted the equations? यस मैम, नोट कर लिया. एक क्वेश्चन पूछना था कि हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ होता है कि इतनी कैलोरीज का, जैसे हमने तो पढ़ा था मील प्लानिंग के वक्त कि मतलब 1/3 हमको ब्रेकफास्ट में देना है, 1/3 लंच में, 1/3 डिनर में, और स्नैक्स वगैरह 1/5 मतलब उसकी टोटल जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देना है. तो हॉस्पिटल में ऐसा कुछ होता है, वो लोग फॉलो करते हैं कि इतना कैलोरी उसको इतना मिलना चाहिए या इतना मिलना चाहिए, या फिर रैंडमली जैसा देना? नहीं, जैसे अगर हम राइल्स टू फीडिंग का प्लानिंग करते हैं तो उसमें कोई डिवीजन नहीं होता है. इसलिए मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि जो भी आप जितने भी ml फ्लूइड देते हो उसके डिवाइडेड बाय आपकी कैलोरीज होगी. मतलब अगर आप 100 ml मतलब 1000 ml दे रहे हो तो आपकी 1000 किलो कैलोरी जानी ही चाहिए. उससे कम दोगे तो वो आपकी एरर है कैलकुलेशन में. बट अगर आप डाइट में कैलकुलेट करते हो देन अगर फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है then you have to divide into 30, 20 and the 10. Like for breakfast you have to give 30%, lunch में भी 30 देना है and dinner में 20 and the rest जो snack and the mid morning होता है उसमें आपको 10% देना है. इस हिसाब से आपको अपनी कैलोरी डिवाइड करनी है. हर हॉस्पिटल में हेरिस बेनेडिक्ट मैम शाजिया मैम का क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिसाइड विच सप्लीमेंट टू गिव एंड हाउ मच? मैम एक्चुअली सप्लीमेंट में हम प्रोटीन्स मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही देखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कैंसर का है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है EPA, DHA. तो वो सप्लीमेंट में कौन सा प्रेजेंट होता है और हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है उस हिसाब से हम सप्लीमेंट डिसाइड करते हैं. अगर हमें पूरे कमर्शियल फीड्स में उसको रखना है देन ऑल्सो वी कैन गिव. अगर हमें डिवाइड करना है कि हमें जैसे 3 से 4 कमर्शियल देने हैं, दूसरे किचन फीड्स देने हैं, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो फिक्स बैठता है देन वी कैन गिव इट. आइडियली हम कमर्शियल फॉर्मूलाज 2 to 3 फीड्स हम उसको देते हैं, बट अगर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है देन वी शिफ्ट टू 8 to 9 फीड्स ऑल्सो. Okay, she is also asking which is the best method to measure the BEE? सबसे बेस्ट मेथड तो बेस यही है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन. बट अगर हमें वेंटिलेशन या स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट्स होते हैं तो उसकी एरिटॉन जोनास इक्वेशन करके आता है, वो हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं वहाँ पे. बाकी तो हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन इज द आइडियल. and that is used by all hospitals? यस मैम. Okay.
Any other questions, other students? Any other queries? Ma'am, Janvi, Kushali, Manisha, ma'am, Nidhi, Pooja, yeah, Janvi. યસ મેમ. મેમ તમે અત્યારે જે કેસ સ્ટડી આપી એમાં અમે સોફ્ટ ડાયટ જ પ્લાન કરવાનું, રાઈટ? એ ડિસ્ચાર્જ No, તો full diet. ઓકે. Yeah. पेशेंट आपका किसका है जानवी? जानवी, पेशेंट की कौन सी सर्जरी हुई है? जानवी, कैन यू अनम्यूट? યસ મેમ. कौन सी सर्जरी हुई है पेशेंट की? मैम नी रिप्लेसमेंट मैम ने बोला, फिर आगे यस, यही कंटिन्यू. नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है. जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है तो शी विल बी हैविंग ऑन फुल फीड और सॉफ्ट डाइट. यस मैम, आई नो, बट एनर्जी बहुत कम है, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि क्या. ओके, तो एनर्जी There is a tip. आप प्रोटीन सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज प्रोटीन सप्लीमेंट्स में कैलोरीज लेस एंड प्रोटीन इज मोर. ओके. सप्लीमेंट्स के लिए हमेशा हम लोग सप्लीमेंट्स को स्टडी भी करना जरूरी होता है कि विच सप्लीमेंट इज गुड फॉर द पेशेंट्स. जितने भी मार्केट में सप्लीमेंट्स होते हैं, दे आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स. तो हर एक सप्लीमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा देने से पहले कि कितने न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रोवाइड हो रहे हैं एंड एक्चुअल एब्सॉर्बिलिटी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है पेशेंट के लिए. देन ओनली यू हैव टू ऐड इट. रैंडमली आप सप्लीमेंट्स यूज नहीं कर सकते हो. हम लोगों ने कभी सप्लीमेंट्स नहीं करवाए हैं उनको. थोड़ा समझ आया मैम क्या बोल रहे हो? हम लोगों ने कभी सप्लीमेंट्स नहीं करवाए हैं. सप्लीमेंट्स मैम वो पूरा एक टॉपिक हो जाएगा कि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं. सो ऐसे जैसे मीनाक्षी ने 2 सप्लीमेंट्स मेंशन किए हैं. वी हैव हाई रेंज ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, देन अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स, देन ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स. एक अगर खाली सप्लीमेंट का नाम जो नॉर्मली हॉस्पिटल में यूज होता है विथ द न्यूट्रिएंट कैलकुलेशन, ओके, जैसे एक फोटोग्राफ 3-4 का मिल जाए तो इवन दे कैन, वी विल इंक्लूड देम इन द डाइट. ओके. तो मैम जैसे हमारे केस स्टडीज डिफरेंट उसके चल रहे हैं, रीनल का हो गया है अभी, प्री और पोस्ट में मीनाक्षी ने मेंशन किए, ऐसे नेक्स्ट में जो हैं स्पीकर्स को हम उनको बोल देते हैं सो दे कैन मेंशन द सप्लीमेंट्स आल्सो. किडनी में भी श्रुति को बोल सकते हैं कि यस, वो दिया जाता है, तो दे कैन शेयर, तो देन वी कैन आल्सो, बिकॉज़ वी हैव नो आइडिया एज फार एज सप्लीमेंट्स आर कंसर्न. श्योर मैम, श्योर मैम. जो टॉपिक्स निकल गए हैं उनके भी हम लोग मेंशन कर देंगे. थैंक यू. थैंक यू मैम. Good एनी session. अदर स्टूडेंट्स, एनी अदर क्यूरीज? सबने कैलकुलेशन कर लिया क्या इतनी देर में? Okay, Meenakshi, I think you are a very best teacher for them. यस मैम, सबको समझ में आ गया. फ्लो में गया तो उन लोग को समझ में आ गया. मुझे ऐसा लगता है Yeah. किसी को क्वेश्चंस ही नहीं है. बहुत अच्छे से समझाया, एक एक चीज आपने क्लियरली उनको बताई है. दैट वाज वेरी नाइस. इवन इंजेक्शंस के बारे में कौन कौन से इंजेक्शंस का हमें ध्यान रखना चाहिए. वी हैव टू सी द इंजेक्शंस व्हिच आर गोइंग टू द पेशेंट. इवन आउटपुट के लिए कितना आउटपुट आ रहा है और लिक्विड हमें मेजर करना चाहिए. उससे ये होता है कि हम लोग फीड प्लान कर देते हैं बट हम ये नहीं देखते कि बाकी लिक्विड पेशेंट को कितना जा रहा है. एग्जैक्टली जो मतलब एक्स्ट्रा लिक्विड कितना जा रहा है वो हम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं. मेडिसिन का हम कैलकुलेट ही नहीं करते. तो वी हैव टू सी एवरीथिंग फॉर द क्रिटिकल पेशेंट्स. यस. Okay, thank you, Meenakshi. Thanks a lot for your very informative input for this session. So we will Thank meet you so much, ma'am. Thank you. We will meet on next Saturday. Yeah, ma'am. Yes. Yeah, thank you. Mine is on Sunday. Okay, yours on Sunday. Yeah. So students, मैंने मीना से भी बात की है. आपको वो फॉर्म मिल जाएगा. That is pending for that session. Rest you have to tell me कौन किसकी assignment बाकी है. So I will ask to the speakers. Okay, so we wind up the session today. Anything, ma'am? Sajya, ma'am? नहीं, it's
good. It's fine. Okay. Thank you, ma'am. Thank you all. You can leave now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.